Hello friends, I am back with my YouTube channel Ravi Sir Biology, and in this session we will talk about transport of chapter life processes for 10th standard. In this video, in this session, we will talk about how the transportation happens, why it happens, what is the need of transportation, and in plants, what are the substances which are to be transported, and the mechanism of transportation of water as well, food we have to discuss here. So let us start without getting any delay. Transport. The first topic is transport. Let me explain it. Transport of substances from one part of our body to the another part of our body. If we talk about we human being, this is the definition. If we talk about plant part, the same definition will be there. Transportation of substances from one part of the plant body to the next part of the plant body is called transport. So this transport is why it is required. Here we will discuss in transport in plants. Let me tell you first of all कि वो substances क्या क्या हैं जो transport होने हैं plants में. तो वो substances हो सकते हैं. Let us write about it. The substances to be transported are water, that may be mineral, as well as the food. So we understand it easily. Water and minerals, these both are the things which are to be taken from the soil by the plant. The root absorb water, and along with water, mineral itself it will come. And food is prepared, the produced food by photosynthesis in the leaves. So if we talk about, if we draw a diagram of a plant, suppose we have to draw a plant. This is a root of plant, a tree I have made, and this is a tree, and one of the leaf I have drawn here. This is a leaf. Just try to understand. One of the leaf I have taken here, for example. This leaf is the site of photosynthesis, so food has been synthesized here by the process of photosynthesis. And here water and mineral is there. So water and mineral will have to move from down to up. Means it has to move downward to upward towards the top, towards the apex of the plant or tree. And the food which is made here, it has to go down towards the root, and it has to go upward as well to circulate the food to each and every part of the plant where it is required. So transportation of food will take place in both the direction, upward as well as downward. And transportation of water is done with the help of roots down to upward. So there is a difference what we can see here in this diagram. Water minerals transportation is done in unidirectional movement, whereas food transportation is done in bidirectional movement. This is the very first difference what we have obtained with the help of this diagram. So the things are to be transported in plants are water, minerals, and food. These are the important things to be transported in the plants. Now let us see. Let's start one by one about these all. Water and minerals. First, the first one, transportation of water. Transportation of water and minerals. So we have already understood, we have already discussed, I am again recalling you, दो ट्रांसपोर्टेशन टिश्यूज होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं. एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम. ये दो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं. These both the conducting tissues are to be are responsible for the transportation of. This xylem is responsible for water movement of water plus minerals
दिस फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कभी कभी, वैसे तो बड़े स्टैंडर्ड में आके ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर ये कंफ्यूजन होता है कभी कभी हम क्रॉस कनेक्शन पा जाते हैं और फूड का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम से कह देते हैं बाय मिस्टेक, या वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम से कह देते हैं। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, अगर कंफ्यूजन इन केस होता है तो आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे जाइलम, इट स्टार्ट्स विद द हिंदी वर्ड, हिंदी लेटर ज, ज से जाइलम और ज से जल। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स जल, आई मीन वाटर, जल मीन्स वाटर। तो ये जाइलम वाटर ट्रांसपोर्टेशन करता है, वाटर के साथ ही मिनरल्स होते हैं, तो वाटर के लिए, मिनरल के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, तो वो मिनरल वाटर के साथ ही चले जाएंगे। एंड दिस फ्लोएम, फर्स्ट से फ्लोएम एंड फर्स्ट से फूड, food is transported by phloem in the plants, that what we have to study। एक और चीज मैंने जो यहाँ बताया है वो ये है, जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ सिर्फ होता है, यूनिडायरेक्शनल है, और फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन लीफ से ऊपर भी हो सकता है और लीफ से नीचे, मींस फूड का ट्रांसपोर्टेशन बाई डायरेक्शनल होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन यूनिडायरेक्शनल होता है। ये हम लोगों को याद रखना है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब हम बात करेंगे ये जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन, ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो दो तरह के सिस्टम से होता है, दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जाइलम के जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। फर्स्ट है ट्रैकीड, first is trachea and second is xylem vessel। Trachea and xylem vessel। Trachea is a structure which is made up of a structure which are closed from both the ends and it has several pores in it which are called pits। These are called pits। So the transportation of water, how it is possible if there is no opening of vessel? I will let you know. Let me draw this first, xylem vessel। These two components are there of a xylem which is responsible for the transportation of water in the plants। So another one is this is a structure, a hollow structure which is called xylem vessel। So it has open end and they will connect it to each other. By connected they are making a tubular structure from top to bottom of this plant, and the transportation of water, the running of water is found inside it, the xylem vessel। But there is a structure, this complicated structure which does not have open end. Then how it is possible? The possibility of water transportation is done by the pits present here in it। Let me tell you again, another structure like this will be attached here, another structure, so this connected to this one, this connected to adjacent xylem vessel, another xylem vessel, so many xylem vessels are connected to each other and form a tubular structure in which water can move easily। So this is called xylem vessel। A trachea is a structure which has closed end from both the side but it has several pores on it। ये देख सकते हैं ग्रीन कलर का जो मैंने पोर बनाया है इसके सरफेस पे, यहां से वाटर निकलेगा और फिर इसमें जाएगा, इस पोर से निकल के इस पोर में, इस पिट में, उस पिट से फिर घुसते हुए अंदर से बाहर आएगा, यहां निकलेगा, फिर यहां से इसमें जाएगा, यहां से फिर अंदर अंदर यहां तक आएगा, फिर यहां से ऊपर आएगा। तो इस तरह ये जो पिट्स हैं, इन पिट्स में वाटर का मूवमेंट हो रहा है और वाटर इजिली मूव कर रहा है। तो ये दो सिस्टम्स, जाइलम वेसल और ट्रैकीड्स, ये दो स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें वाटर का ट्रांसपोर्टेशन
होता है प्लांट्स में। वाटर जहां है उनके साथ मिनरल्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं वाटर एंड मिनरल्स बोथ आर रनिंग टुगेदर इन द ट्रैकिड्स एज वेल एज जाइलम मसल। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, वी हैव अ होम एट आवर हाउस। एक फ्लोर का अगर हमारा घर है और वाटर टैंक ऊपर है, उस वाटर टैंक को भरना है तो वाटर टैंक के लिए हम मोटर लगाते हैं, और फिर हमारा 10, 11 फीट 12 फीट के हाइट की हमारी बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग पे वाटर, उस टैंक में वाटर चढ़ता है। तो इसके लिए हम एक मोटर लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, फिर वो पावर वो पहुंचाता है। डबल फ्लोर हो तो पावर बढ़ा के हार्स पावर बढ़ा देते हैं उस मोटर का, और फिर 1/2 हार्स पावर से 1 हार्स पावर कर लेते हैं, 1 से 2 करते हैं, और तब वो उसको बढ़ाते हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर। If we are increasing the power of motor at our home to fulfill the tank of water, but the thing is this, if we talk about this structure in the plant, there is no motor, no mechanical thing is there, no electricity is there, no power is there, still the water can move from root to top apex of the plant. How is it possible? This is really very surprising thing, but still it has to be done. कैसे होता है वो? इसके लिए एक टर्गर प्रेशर क्रिएट होता है। वो टर्गर प्रेशर क्या करता है, वो वाटर को पुल करते हुए पुल करके वाटर को और नीचे से ऊपर की तरफ ले जाता है। मैं इस डायग्राम की तरफ एक बार फिर से आपको ये करूंगा। यहाँ पे देखिए वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर इज मूविंग। यहाँ पे ढेर सारे कैनाल्स बने हुए हैं, ऐसे सिस्टम बने हुए हैं, जाइलम वेसल्स, इन जाइलम वेसल्स में जाता है वाटर, और जितना वाटर चला जाता है उसका 75 से 90% वाटर, 90 to 90 more, in fact more than 90% of water will moves out of the plant. जितना वाटर एब्जॉर्ब करता है एक ट्री, उसका 90% से ज्यादा वो वाटर, जितना एब्जॉर्ब किया उसका 90% से भी ज्यादा वाटर को वो इवेपोरेट कर देता है, और उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। The process by which loss of water takes place from a plant in the form of vapor is called transpiration. Transpiration एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट वाटर लॉस करता है वाटर वेपर के फॉर्म में, और वो ट्रांसपिरेशन होता है लीफ सरफेस से। आप देखे होंगे लीफ सरफेस पे कभी कभी वाटर बबल्स लगे होते हैं, ड्रॉपलेट्स लगे होते हैं, वो ड्रॉपलेट्स ट्रांसपिरेशन ही कर रहे होते हैं, इसीलिए वैसे दिखाई देते हैं। तो वाटर एब्जॉर्ब हुआ, वाटर एब्जॉर्ब किया, और जितना एब्जॉर्ब कर रहा है सब के सब वो बाहर चला जा रहा है, तो एक फ्लो बन गया। यहां से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, चला जा रहा है बाहर, एब्जॉर्ब हुआ बाहर चला गया, कंटिन्यू एक फ्लो बन गया, जिस फ्लो को कहते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल, उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। और वो ट्रांसपिरेशनल पुल वाटर को अपनी तरफ प्रेशराइज करता है, खींचता है, और इस तरह डिफ्यूज करता है, वाटर डिफ्यूजन होता है, और वो वाटर इजिली डिफ्यूज होके, और ट्रांसपिरेशनल पुल, एक पुल फोर्स काम करता है ट्रांसपिरेशन की वजह से, जिससे वाटर जल्दी जल्दी मूव करने लगता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग के एरिया में द बिगेस्ट ट्री इज यूकलिप्टस, जो कि 100 मीटर लॉन्ग तक रिपोर्ट किया गया है, 100 मीटर टॉलर होते हैं, और वहां पे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और वो पॉसिबिलिटी तभी होती है जब ट्रांसपिरेशनल पुल काम करेगा। वाटर absorption will be done, loss of water is very very important, which maintain the temperature of plant body as well as it serve the minerals। वाटर को एब्जॉर्ब किया तो उसके साथ जो मिनरल है उस मिनरल को प्लांट ले लेगा, और वाटर वेपराइज हो गया, तो वाटर चला जा रहा है पर वो मिनरल को दे दे रहा है, तो बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन हो गया, और मिनरल की सप्लाई भी प्रॉपर्ली हो गई, और लॉस ऑफ वाटर हो गया तो फिर वेपराइज होगा, वेपराइज होके फिर से क्लाउड फॉर्मेशन होगा, फिर रेनफॉल होगा, और फिर वाटर जो है सरफेस पे आ जाएगा, और फिर एब्जॉर्ब होके फिर प्लांट लेगा, और इस तरह वाटर साइकिल भी मेंटेन रहेगा। तो इस तरह ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से ये इजिली वाटर पुल करते रहता है, और वाटर ट्रांसपोर्टेशन होते रहता है। एक बार फिर से मैं रिकॉल करता हूं क्या मैंने बताया है आपको, और फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। मैंने बताया ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले वाटर और मिनरल्स, ये दो चीजें, वाटर मिनरल्स और फूड, ये तीन चीजें प्लांट में चाहिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए।
वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम से, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड से। जो जाइलम के कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल्स होते हैं जो पूरे प्लांट बॉडी में फैले होते हैं, बहुत ही थिन, बहुत ही माइक्रो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो पूरे प्लांट बॉडी में फैले होते हैं और वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। अब सॉइल से कैसे एब्जॉर्ब करते हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है, प्लांट नहीं, प्लांट का रूट है और ये इसका रूट हेयर है। तो ये रूट हेयर क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वाटर को एब्जॉर्ब कैसे करता है, क्योंकि इस वाटर को एब्जॉर्ब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में वाटर मूवमेंट होता है, मॉलिक्यूलर शिफ्टिंग होती है। तो वाटर मॉलिक्यूल इज मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है वाटर का और इसके रूट सॉइल में रूट हेयर में इसका कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर सॉइल से चला जाएगा रूट हेयर से रूट में चला जाएगा और वहां से, तो मींस एब्जॉर्प्शन का काम करता है सॉइल से, वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन का काम करता है ये रूट हेयर। ये रूट हेयर एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके और जाइलम वेसल और ट्रैकिड में इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है और वो टर्गर प्रेशर, ट्रांसपिरेशनल पुल, इसकी वजह, इनके हेल्प से वाटर यहां से और वहां तक, टॉप ऑफ द प्लांट तक, एपेक्स ऑफ द प्लांट तक इजिली कन्वे होते रहता है और फिर इस तरह प्लांट सर्वाइव करता है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द प्लांट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग, ट्रांसपोर्ट इन अदर एनिमल्स, एंड वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हाउ इट इज वर्किंग एज अ पंपिंग ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। थैंक यू।